Hello students, welcome again to Confident Commerce. Hope you all are totally dedicated towards your studies and your practice of accountancy. Beta, stay dedicated as it's not going to happen overnight. क्योंकि आपको हार्ड वर्क लगातार करना पड़ेगा. नो डाउट यू आर नॉट इन योर स्कूल्स नाउ. यू हैव टू सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ फॉर बेस्ट रिजल्ट्स बिकॉज द क्लॉक इज वर्किंग. घड़ी नहीं रुकी है, टाइम इज पासिंग. You have to monitor yourself without any supervision of your teachers or the authorities. ठीक है? Okay. Now I think you all are intelligent enough to monitor yourself, and let us start the new topic of interest on capital. We have covered the topic of interest on drawings in the last class. Hope उसके सारे formulas and everything is clear to everybody. Next is interest on capital. Now just a very quick revision कि interest on capital होता क्या है. तो students ये these are our partners, and as we have done in business in last year's accountancy, that business and businessmen are separate things, separate entities. Similarly over here the partnership firm and the partners are different entities. इन्होंने अपनी कैपिटल दी है, किसमें इंट्रोड्यूस की है? पार्टनरशिप फर्म में. And for that the partnership firm is giving them interest on capital, and by default interest on capital is an appropriation. What is appropriation? Which is not a charge. खर्चा है ये फर्म के लिए. ओके, फर्म ने पे करना है किसको? पार्टनर्स को. बट इट इज नॉट अ चार्ज कि कंपल्सरली पे करना ही करना है. भाई प्रॉफिट है तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के लिए तो पे करो, अगर नहीं है तो मत पे करो, और अगर थोड़ा है तो कितना पे करना है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा. अभी मैं करवाऊंगी तो आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग अप द नेक्स्ट द सम रिलेटेड टू दिस theory, but the concept will be cleared in this video only. Okay, now interest on capital appropriation है unless and until it is mentioned as a charge. Okay, now let us begin. Just an overview of all the journal entries. Only two journal entries main जो है interest on capital की हमने की हुई है journal entries. That is interest on capital debited to X capital account. अगर इसकी हम पोस्टिंग को रिमाइंड करें अपने माइंड में तो बेटा ये हमारा P&L appropriation, just a rough overview, and this is A and B suppose partners capital account है. Obviously इधर all the expenses are on the debit side या फिर appropriations are on the debit side, क्योंकि P&L appropriation ये quick overview आपके पिछले कुछ लेक्चर्स का भी है. ओके, so P&L appropriation is on the side of the firm, from the side of the firm. So to interest on capital कह सकते हैं, या फिर to जो भी आपका A's कैपिटल अकाउंट या B's कैपिटल अकाउंट या X and Y हम रख देते हैं यहाँ पे. चलिए, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में हमने कौन से पार्टनर्स लिए हैं? X and Y. ओके, टू X कैपिटल अकाउंट एंड Y कैपिटल अकाउंट. अब जो चीज यहाँ पड़ी है इसकी डेबिट साइड में, ऑब्वियसली वो इसके लिए इनकम है, इसके कैपिटल को बढ़ाएगी. इसके कैपिटल अकाउंट के दीज आर द कैपिटल अकाउंट्स. इसको आई हैव taught you whole of this concept in a very formal and calculated way, in a very proper way in previous videos. अगर आपको नहीं आपने देखी या नहीं अभी भी समझ लगा है तो please go through the previous videos. Okay, now it has gone to the credit side of X and Y capital account. यहाँ पे आपका by interest on capital आ जाएगा और ये वाली journal entry true हो जाएगी. Interest on capital debited to X कैपिटल टू वाइज कैपिटल, ये हो रहा है. एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं. P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाली जर्नल एंट्री ट्रू हो गई. ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसको हम अभी
for the time being erase कर देते हैं, because this whole thing is almost given in the previous videos also. Now how about the concept of treating interest on capital actually? Okay, interest on capital beta, there are three main things you have to keep in your mind. No doubt calculation of interest on capital नहीं है ये, that will be your next topic. Okay, this is just knowing interest on capital. Now nothing is given in the deed. If, यहाँ पे ऊपर एक if पक्का लगा लीजिए, if nothing is given in partnership deed कि what is interest, how much is the interest on capital, or interest on capital will be given to the partners or not, then what will happen? Nothing will be given to them. There will be no interest on capital. ये हम पहले भी कर चुके हैं. Next is if interest on capital is an appropriation. जैसे अभी हमने बात की कि अगर प्रॉफिट है तो प्लीज दे दीजिए, अगर नहीं है प्रॉफिट तो मत दीजिए, और अगर थोड़ा है प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपका 20,000 है पर आपके पास प्रॉफिट बचता है सिर्फ 18,000, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको देना है, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, नाउ इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, देन फर्स्ट केस इज that if the profit before giving this appropriation on interest on capital is more than or equal to interest on capital, बस बहुत बढ़िया बात है. फिर तो अगर प्रॉफिट, अब सब कुछ आपने सब एप्रोप्रिएशन दे दी, सपोज कीजिए आपने सैलरी दे दी, आपने उनको कमीशन दे दी पार्टनर्स को, ठीक है, और यहाँ दूसरी तरफ क्रेडिट साइड पे आपके P&L एप्रोप्रिएशन के आपने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ले लिया. अब ले दे के रहता क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, एंड द प्रॉफिट विच इज लेफ्ट इज योर प्रॉफिट इज मोर और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन वेरी गुड, गिव इट. जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना दे दीजिए. नाउ द प्रॉब्लम लाइज इफ देयर इज लॉस. अगर सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद या आपके पास लॉस ही है बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 20,000 टोटल दोनों का, आप सपोज कर लीजिए कि ए का 6,000 है, ओके, एंड दीज आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सपोज्ड फिगर्स मैं ले रही हूँ, ठीक है. A's is 6,000 and let it be, B's is let it be 12 and 8, ऐसे कर लीजिए, ठीक है. But the profit is not there, there is loss, okay, and loss is means there is no profit, so you won't give any, no interest on capital will be given. Okay, after that if the profit before interest on capital is less than total of, now total of interest on capital आपका 20,000 है बेटा, okay, but the profit you are left with for interest on capital is very less than 20,000. 20,000 पूरा नहीं दे पाएंगे पर है प्रॉफिट है, ठीक है. उस केस में क्या करेंगे बेटा, आप अभी नोट कर लीजिए इस चीज को कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको आप अगर हम जनरलाइज करें, और इन जनरल एनी एप्रोप्रिएशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह सपोज करो सिर्फ सैलरी रहती है आपकी और प्रॉफिट कम है सैलरी के जितना नहीं है और 2 जनों की सैलरी है दोनों पार्टनर्स की, देन ऑब्वियसली इन रेशियो ऑफ एनी दैट वेरी एप्रोप्रिएशन, जो सी भी एप्रोप्रिएशन है, वेदर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एप्रोप्रिएशंस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, वो एक्सपेंस जो खर्चा फर्म उठा रही है किसको दे रही है, पार्टनर को दे रही है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, नाउ हाउ अबाउट दिस, सपोज इससे रिलेटेड सम हम कल करेंगे बेटा. जितना भी आपका प्रॉफिट है जो कि इससे कम है, सपोज इट इज, पहले तो आप इनकी रेशियो देखिए. रेशियो क्या है, 12:8. दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3:2. 3:2 की रेशियो है ये, ठीक है. सो हाउ यू विल, आप कटिंग करके देख लीजिए. अगर आपका इफ योर प्रॉफिट इज 15,000 जो कि रह गया है इनको देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो आप क्या करोगे, 3/5. हाउ मच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए विल बी 15,000 का 3/5 and interest on capital to be given to B will be 15,000. जो प्रॉफिट रह गया उसका 2/5. सिंपल एज नथिंग. तो इसको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 9,000 देंगे एंड यू विल गिव ओनली 6,000 टू B instead of 12,000 and 8,000. Okay, now this is the case when there is less profit than the appropriation. And third case is, this is first, second, अगर वो appropriation लिया जा रहा है तो adjustments possible है. पर अगर it is mentioned in the question that interest on capital is a charge, then it is compulsory to be given whether प्रॉफिट या लॉस हुए फर्म को, इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है. तो दीज वर द केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड वी विल बी डूइंग सम सिमिलर सम इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गो थ्रू द केसेस एंड ऑल द बेस्ट.